All right, I'm giving you access. Here we go. So, firstly, welcome to our channel, Manasi, and a very, very big congratulations for your song Kithe Chali. Its promo is amazing, looking too good. So, what kind of responses about promo? बहुत अच्छे responses मिले. In fact, with the people that I'm working with, 9XM, my manager Parveen, Spotlamp, I find it so exciting that there are people that believe in indie music and they are indie music. पहली बारी मैंने जिंदगी में वो जो the link to the promo, I've literally made broadcast lists on my phone, and my manager will tell you I never do this, but मैंने सबको भेजा. Like I'm sitting there with my Facebook and I'm telling my manager, send it to everybody, send it to people, because एक तो product बहुत अच्छा है. Ranju's done a great job with choreography. Parul Kakkad, who is Punk House of Couture, has done fantastic outfits, makeup, the hair, the dancers. Gaurav Dasgupta's faith in this entire product, of course, Pradeep Guha as well, who heads 9XM. Just the people who've come together, and जो faith इस गाने में लोगों ने दिखाई है from our side before it gets to the audience. It reminds me of when I released Nachle in 2005, and बीच में ना online TV and all these reality shows, it ruined it. मुझे लग रहा है कि I'm younger now than I was then, because that Josh during Alisha Chenoy's time or Shweta Shetty's time, that's back. Abhi aap pe nirbhar hai, and the fans, of course, to make this song a hit, and I have full faith in God, and I have full faith that we will make it one. ओके, सो आपकी एक्साइटमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाला है फैंस के लिए. सो आपसे जानना चाहूंगी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सॉन्ग के दौरान. Very interesting question, and I'll tell you something. पहली चीज, just the night before the video, मेरा एक event था. मैं घुड़सवारी करती हूँ. I ride a very massive event, जिसे 6 बजे खत्म होना था, पर हुआ खत्म 12 बजे रात के. And my call time in the morning in Vasai was 5 o'clock. तो मतलब 4 बजे उठ के I drove myself, क्योंकि उस समय ना तो drivers थे, housemaid, गांव गए हुए थे, they weren't there. In fact, कल के इंटरव्यू से पहले मैं सोच रही थी कि इतना फर्क था, क्योंकि नाचले जब किया था, डाइटिंग की थी, एक्सरसाइज की थी, इतना सारा पैसा डाला था उस पे. बट मैं कहूंगी कि ये एक्सपीरियंस इतना मेरे लिए इतना important और close to my heart रहा है, because besides me believing in the product, people I don't even know believe in it as well. And something about this has reminded me of a conversation of mine when I was in school with Uday Benegal, who used to have a band called Industry Rock Machine. जिस तरीके से उन पे विश्वास किया जाता था, how MTV and the channels used to believe in them, to have that faith from a channel like 9XM and Spotlamp, an online channel, it makes you feel really good as an artist. तो आज मैंने सुबह ये प्रोमो देखा है 9X जलवा पे या, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इंटरव्यू इसी सॉन्ग का है. प्रोमो इज आल्सो वेरी अमेजिंग. I think जो दिख रहा है आपको वो is just the effort and the love and the hard people, and I hope कि more and more indie artists get this kind of a team working with them. My manager Parveen Bhatia also, I think she should be on here. It's just so many people that come together. आप smile करके आप देख रहे हैं और कह रहे हैं आपको प्रोमो कितना पसंद है, and these times have allowed us to connect like this. नहीं तो गायब हो जाता कहीं किसी स्ट्रीम में, किसी YouTube चैनल पे, but we're talking about it. So अभी आप पे निर्भर है और बाकी audiences पे that you make this song a hit. Okay, so लोकेशन के बारे में जानना चाहूंगी आपसे कि कहाँ दर्शाया गया है सॉन्ग को, लोकेशन के बारे में. Location is a beauty. In fact, this was Ranju's place. मैंने जब मुझे कहा कि तुम वसई आओ, I was like, मतलब कहाँ पे, and no driver, no nobody. So Google Maps पे ढूंढ के हम लोग कहाँ पहुंचे थे. It's called the Post Office वसई. And अगर आप देखेंगे सारे जो आपको इतने interesting अलग-अलग locations मिले, वो एक ही जगह है in the video.
So it's a beautiful sort of a resto pub in Vasai with great food and a really great host, the Post Office Vasai. And हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तरह से हमारी you know, they took really good care of us, and जैसे मैं कह रही हूँ आपसे, you know, everybody came together for this product and it was great. So आपकी एक्साइटमेंट और आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग होगा ही. सो आपको क्या कुछ लगता है कि यूएसपी पॉइंट क्या कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी इस सॉन्ग को लेकर? You know, again, very interesting question. मैंने ना एक फिल्म की थी called भाग जॉनी, and सोहा मेरे साथ बैठी थी, उनके हीरो in the film. And मैं पूछ रही थी उनसे about, you know, इतना सारा एफर्ट जाता है किसी एक प्रोडक्ट में और अगर वो हिट नहीं बनता है तो कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत पते की बात सोहा ने मुझे कही थी कि, you know, as an actor, as a performer, as an artist, you give your best, बाकी सब छोड़ दे, और अगर नहीं चला तो you move ahead. But with music, I realized कि एक recall value रह जाती है. And I think हिट तो आप लोग बनाने वाले हैं इस गाने को, but I think this is a product that I want to be remembered by. I think जो भी जैसा जहाँ भी गया, जिस you know, जितने भी lives हुए या ना हुए, this is a great product. It's a great song with twisted bass. उन्होंने मुझे basic skeleton पहले भेजा, DJ producer, फिर गौरव दासगुप्ता, who heard it and said, that's it. मैंने तो scratch बनाया था, गाना गाया भी नहीं था ठीक से, and he said, this is it. So to have that kind of faith, I think कुछ हुआ या ना हुआ, this is a product that I want to be remembered by. मेरा बच्चा है 14 साल का, he and his friends heard it and they just looked at me and said, Manasi, this is a hit. That's all I need to hear. Right. So आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं, आपको फीलिंग कैसी होती है जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं इतनी सारी ऑडियंस के सामने? लाइव कॉन्सर्ट्स तो बहुत किए हैं, बाय गॉड्स ग्रेस. फेमिना से था कुछ 2045 कॉन्सर्ट्स का, तो मुझे लगता है हम लोगों ने शायद 3000 से भी ऊपर किए होंगे. एंड आई डोंट नो इफ यू नो, बट प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की शादी पे सिर्फ मुझे बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए. दैट वाज अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस. एक्चुअली स्ट्रेंजली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये जो वीडियो से शूट किया व्हाट्स कॉल्ड गुरिल्ला स्टाइल, ना मौका मिला कुछ चेंज करने के लिए या रेपिटेटिव टेक्स करने के लिए. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ लाइव कॉन्सर्ट, यू नो. लाइव के बराबर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है. दैट रश, दैट कनेक्शन विद द ऑडियंस, दैट यू नो, आपको चांस नहीं है दोबारा कुछ करने का. यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट शॉट द फर्स्ट टाइम. That's what I feel the most alive, and that's what I've missed the most in lockdown. इसलिए मैंने ये घर से 180 Instagram लाइव किए. But 2 दिन पहले we got back onto stage luckily and it was great. Stage के बराबर कुछ है. I think because of COVID, because of Corona, we are moving into a new normal. तो हम लोग को आपके साथ मिलजुल के with the press, we have to create new ways of entertaining the audience. So I'm hoping कि अगर हमें stage नहीं मिले या live location नहीं मिले, that we can interesting concepts online which are as exciting as live shows on ground. That's my wish, but live stage के मुकाबले कुछ है नहीं. तो मानसी, जैसा कि आपने बोला कि प्रियंका और निक के साथ भी आप परफॉर्म कर चुकी हैं, उसकी फीलिंग जानना चाहूंगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका कैसा था आपका? I think one of the best shows ever. इसलिए मैंने वीडियोस लॉन्च नहीं किए because प्रियंका और मेरी थोड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि her father and my parents were batchmates in the Armed Forces Medical College. और वो बहुत graciously कहती हैं शादी, my maiden surname is रविंद्रनाथ. हालांकि मैं अभी सिंगल हूँ, बट वो स्कॉट रह गया मेरे साथ. सो उन्होंने माइक पे अपनी शादी के दिन सबको कहा था कि मानसी इज द रीजन दैट आई वांटेड टू बी अ, कि बचपन में उन्होंने मुझे गाते हुए सुना था. एंड आई थिंक यू नो शी इज सच एन इनक्रेडिबल पर्सन, और वो बहुत शी इज वेरी ट्रू टू एवरीथिंग. सो शी चोज मी बिकॉज आई हैड दिस कनेक्शन टू हर विथ म्यूजिक. एंड हम लोग गए थे, पूरा बैंड था मेरे साथ. इस तरीके से उन्होंने बैंड को, मुझे, सबको ट्रीट किया. Those two human beings are two of the best people that I know. And then Nick Jonas स्टेज पे हमारे साथ
you know, he was singing. It was great. It was magical. It was very simple. It was personal. And I'm like, we had Game of Thrones stars in the crowd. We had the people who wrote Girls Like You, ये थी Superwomania, बहुत सारे लोग थे. And I think it was one of my best concerts because nobody left the dance floor. Shuru se end tak. It was a great experience. And someday I hope she and I can do a song together. Let's see. Okay. All the best. So आपसे जानना चाहूंगी आपके फैन मोमेंट्स के बारे में. कौन सा ऐसा फैन मोमेंट आपका जो आपके दिल के करीब रहा हो? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Wolverine Jackman. मैं फिक्की के लिए एक शो कर रही थी and I found out he was in the audience. And कुछ महीने पहले I think he had hosted the Oscars और वहाँ पे उन्होंने गाना गाया था All That Jazz from a movie and a play called Chicago. And I walked on and I saw him sitting there and I was singing the same song. And I just said, you know, Hugh, would you like to sing? And he sang with me. And सोचिए Hollywood stars में कितनी तमीज़ है कि शो खत्म हुआ and they loved what I was doing. He actually walked up from the front of the crowd, came backstage just to tell me I was a great singer. That was fully. So आपसे जानना चाहूंगी आप एक्टिंग करती हैं, डांसिंग भी करती हैं, सिंगिंग करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, मल्टी टैलेंटेड है. आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? आप खुद को किस चीज में सबसे ज्यादा एंजॉय कर पाती हैं? So sweet, you know, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप प्रेस और रिपोर्टर्स ये क्वेश्चंस फ्रेज कर रहे हैं. बिकॉज पहले बस या तो बॉलीवुड या तो हॉलीवुड या तो ऐसे क्वेश्चंस होते थे. सो नाउ आई कैन आंसर यू ट्रूली. इट्स म्यूजिकल थिएटर. मुझे हर चीज लाइव पसंद है. बचपन से जब भी स्टेज पे कुछ भी प्रेजेंट किया है तो डांस किया है, थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग की है और गाया है. ब्रॉडवे वुड बी माई नंबर वन. अगर वहां पे मुझे कुछ मिल जाए, बॉलीवुड हॉलीवुड का कुछ मैशअप हो जाए ब्रॉडवे में. आई लाइक एनीथिंग लाइव. सो अगर उसके साथ गाना हो जाए, first love is singing for sure, but every time I've sung, you know, I've always danced, I've always presented it, I've always dressed up, I've always put together. So for me, it's the three things, the triple threat: singing, dancing, acting together on stage. Okay. So आपसे जानना चाहूंगी आपके इंस्पिरेशन कौन है, आइडल किनको मानती हैं आप? You know, बदलता रहता है. I realize now इस उम्र में कि बचपन पे ना कभी गाना सीखा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं. टेड टॉक किया है, ऐसे फट से गाने बना देती हूँ मैं. ये भी गाना लिटरली 5 मिनट. बदलते रहे हैं. इस वक्त कहूंगी शेर इज एन इंटरनेशनल आइडल, और इंडिया में कहूंगी सोनू निगम, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी आवाज को बदलते हैं और जिस तरीके से he can use the vocal cords is incredible. Sonu knows it. But I've also realized that producers and sound engineers, unko, you know, we've not given them their due. So I met 7-time Grammy winner Leslie Brathwaite, और मेरे साथ जो काम कर रहे आशीष मनचंदा, जो माइकल जैक्सन की एल्बम पे काम करते थे और पिछली हिंदी एल्बम उनके साथ मैंने रिलीज की थी. I've realized कि मेरे इस वक्त आइडल्स, विटनी ह्यूस्टन के गाने गाते गाते सीखा है, नाज़िया हसन के गाने गाते हुए सीखा है. बट आई थिंक राइट नाउ माय आइडल्स आर पीपल हु टीच मी. ट्विस्टेड बेस इन द सिचुएशन, गौरव, 9XM, पीपल हु कैन टीच मी आर माय आइडल्स. अगर हम लोग एक यू नो अप्रोच हर चीज पे लें और लोगों की बातें सुने, बहुत सरप्राइजिंग है कि कौन आपको टीच कर सकता है, कौन कहाँ से आपको क्या सिखा सकता है. सो राइट नाउ आई विल से माय आइडल्स आर पीपल हु हैव सर्वाइव्ड लॉकडाउन, who are doing things, who are still continuing with their work, people who've learned to be happy. I find are my idols right now in these troubled times. तो आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत कुछ किया अभी तक अपने लाइफ में, सिंगिंग की है, एक्टिंग की है, डांसिंग की है, बहुत कुछ किया और बहुत सारे आपको अवार्ड्स पे मिले. सो आप क्या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका जो आप करना चाहती हैं? अगर आप मुकेश छाबड़ा को जानती हैं तो आपको I know. मुझे एक शो किया था हमने साथ में कॉल्ड बॉलीवुड, एंड मुकेश मुझसे कहते थे कि तुम्हें एक रोल दिलवाना है, एंड आई लव हिम, बहुत करीबी दोस्त है मेरे. मैं उनसे कहती थी कि मुझे ना एक
डांसर सिंगर का रोल करना है बॉलीवुड में जो मर्डरर है. सो स्टेज करते हुए जाके किसी का खून करेगी और उसका वो एलिबाई रहेगा. ये हम लोग हंसते हंसते बात करते थे और किसी ने अभी हाल ही में एक स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है. मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा होगा जहां पे मैं अपने सारे गुण, I want to sing, I want to act, I want to, and I don't want to be like a heroine, typical, what they call a negative character. Thoda martial arts, thoda horse riding. I think I want to do a movie with girls, with women who are strong, who are independent, who, like me, ride horses, do bungee jumping, do skydiving. किसी को picture बनानी चाहिए, which is about very interesting. life and women. So here, but otherwise the dream since I was 7 years old has always been a Grammy. And why the Grammy and not an Indian award is because जिस तरीके से आर्टिस्ट को वहां पे रिस्पेक्ट दी जाती है, जिस तरीके से एंटरटेनमेंट में इतना एफर्ट डाला है, वो हम लोगों ने सीखा नहीं है अभी तक. सो द ड्रीम वुड बी द ग्रैमीज एंड दिस वेरी मैड बॉलीवुड फिल्म. अपनी सब लोगों को ये भेजें, सब सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये भेजें. राइट आई विल सेंड. सो आपसे जानना चाहूंगी, आपका 2 लाइन गुनगुना देंगे अगर किथे चली आपका सॉन्ग जो है ऑडियंस के लिए? एब्सोल्युटली. किथे चली कुड़िए, किथे किथे चली कुड़िए, she's gonna walk on by from a walk on part in your life. The rest you have to watch the video. Yeah. Lyrics is amazing and your singing is awesome. So lovely to talking to you. Thank you, Manas. Thank you. Lovely to talk to you too. Thank you so much. Bye bye. Take care.